Welcome students, welcome to Masters Bloomingdale Academy. Today we are going to discuss some of the numerical problems of first chapter, reflection of light at curved surfaces. As you all know that physics is not only theory part, in physics we have numerical part also. So you have to solve the problems. If you want to score good marks in physics, you should be thorough in your problems. It will be easy for you to get good marks. So without wasting any time, so we will start the video. So when you see the problem here, an object of 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 15 centimeter. So he is asking us to find at what distance from the mirror would a screen be placed. In order to obtain a sharp image, find the nature and size of the image. So first of all, let us see what is given in the problem. So given height of the object is given, which is 4 centimeter. Similarly, focal length is also given, so which is minus 15 centimeter. And the object is placed at a distance of 25 centimeter. So this will become your object minus 25 centimeter. So what we have to find out? We have to find out V. So as you know that I have written minus in front of focal length and in front of object distance minus. Why? Because of sign convention, and it is also in front of the concave mirror. So that's why I am taking minus 25. So the focal length of a concave mirror is minus value. So we know the mirror formula. What is the mirror formula? 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. So from this formula you have to get the answer. So we need 1 by v. So we can change this formula to 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Now you have to substitute the values. So what is the value for f? 1 by minus 15. So similarly, u is also minus 25. So this minus and minus, they will become plus. So I can write like this: 1 by minus 15 plus 1 by 25. Now you have to take the LCM of 15 and 25. So when you take the LCM, you will get the LCM. Now let us take the LCM of both the denominators. So 15, 25, 5 3s are 15, 5 5s are. Again 5 1s are, 3 1s are. So the LCM will be 5 into 5 into 3. 5 5s are 25, 5 3s are 75. So I am getting 75. So now we can solve this problem. Minus 15 plus 1 by 25. So I have to multiply with such a number so that I should get 75. So if I multiply by 5, I will get 75. 15 into 5, 5 to 75 LCM. So I have taken 5 here, so I have to take 5 above also. Now 25. 25 into which number? 3. 25 3s are 75. Similarly 3. Now
1 into 5, 5 plus 3 by 75. But here the minus sign is there, so I have to place minus 5 plus 3 by 75. So this answer I am getting. Now you write this value here. So what is the value here? Minus 5 plus 3 by 75, which is equal to minus into plus minus 2 by 75. If you further simplify, you will get minus 37.5. So you may ask that how we are getting minus 37.5. So the value is 1 by v is equal to 2 1s are 2, and if I am dividing this by, so I will be getting minus 37.5. So how to remove this 1 by 37.5? So if you interchange the sign values, v is equal to minus 37.5. So this is the value of v which you are getting. So at the same time, he is asking the nature of the image. So you can see here the value of v is minus. So we can say that the image is real. And now is asking us to find out the magnification. Now let us see how to find out the magnification. We know the formula for magnification is m is equal to hi by ho, that is height of the image by height of the object. So we can write like this also, minus v by u. So magnification has two formulae, hi by ho as well as minus v by u. So now we have to find out hi, we don't know, but we know ho, height of the object is 4. What is the value of v? Minus 37.5, which we got just now. So u, you know that it is 25. So now we have to place these values, and you will be getting hi is equal to minus 37.5 by 25. This 4 will go this side, it will become 4. So when you simplify this one, if you multiply both of this and divide by 25, you will be getting a value of minus 6. So the magnification is minus 6 centimeter. So now you will write this answer here. So what is the magnification here? Magnification is equal to minus 6 centimeter. So what is the nature? Nature of the image is real. And what is the size of the image? It is minus 6 centimeter. So it is minus 6 centimeter means it is greater than the size of the object. The object is 4 centimeter and the image is minus 6. So we can say that the image is enlarged. It is bigger than the object. So this is the solution to this problem. Now let us see the next problem. Now let us do the second problem. In this problem, object size is 7 centimeter. So HO is equal to 7 centimeter. Is placed at a distance of 27 centimeter. Here 27 centimeter क्या है? This is our object distance. So as it is a concave mirror,
सो अब क्या लेना है अपने को, -27 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। माइनस और प्लस, माइनस, why, because it is a concave mirror and it is placed in front of the concave mirror, so that's why I am taking -8. so अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, we have to find out v is equal to how much, अपने को v फाइंड आउट करना है। so same we have to write the mirror formula, क्या है, 1/f is equal to 1/u plus 1/v। सो अपने को फॉर्मूला क्या निकालना है, v निकालना है ना। सो ये फॉर्मूले को अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे। सो कैसा लिख सकते हैं अपन, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो नाउ वी आर टेकिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आंसर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 1/v इज इक्वल टू f वैल्यू क्या है, 1/-18। इसी तरह से 1/u, u का वैल्यू क्या है, -27। सो माइनस और माइनस प्लस हो जाते। सो क्या लिख सकते हैं अपन, 1/-18 प्लस 1/27। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों को एलसीएम निकालना है, फिर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब अपन एलसीएम निकालेंगे। सो क्या है एलसीएम, 18 और 27 का। तो 18 और 27 का कैसा निकालेंगे, दोनों 3 से जाते ना, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3, 2 जा 3, 3 जा, so 2 1 जा 3। Is it clear? So now 3 3 is 9 or 3 into 3 into 2 into 3, 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 3 is 54। तो अपना एलसीएम क्या आ गया, 54। अब ये 54 को अपन इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या है इधर, 1/-18 प्लस 1/27। तो ये वैल्यू है ना इधर। तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, सो वी कैन डू लाइक दिस। अब यहाँ पे -18 है ना, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी विल बी गेटिंग 54। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे नीचे भी 3 ले लिए तो ऊपर भी ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे प्लस है ना, 27 इंटू 2 to get 54, so 1 into 2। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने क्या आता, 3 + 2 by 54। सो यहाँ पे माइनस है ना, सो इट गोस अप, इट विल बिकम -3 + 2 by 54। सो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता, आप -1/54। सो अपना आंसर क्या आ रहा, -1/54। सो ये वैल्यू अपन उसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/v इज इक्वल टू क्या है, -1/54। इससे पहले मैं बताया कि अपने को ये 1 हटाना है, तो उसका इन्वर्स कर लेना। सो v इज इक्वल टू क्या है, 54। इज इट क्लियर? सो अब ये वैल्यू आ गया अपना v। सो v क्या है, प्लस है और माइनस है, v माइनस है। अपने को क्या फाइंड आउट करो बोले उन्होंने, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जैसा कि आप जानते v माइनस है ना, सो क्या है वो, इट इज रियल, एंड माइनस है इन्वर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड है। एंड व्हाट इज द साइज,
अभी तो साइज अपने को मालूम करना है, तो साइज कैसा मालूम करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। तो बोलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू HI/HO, या ऐसा भी लिख सकते -V/U। सो अपने को HI फाइंड आउट करना है। सो HO नहीं मालूम है, तो HI/HO 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V क्या है? -54/U 27। तो अपन क्या करेंगे, इसको ये 7 को उधर भेज देंगे। सो HI इज इक्वल टू -54/27 इंटू 7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 27 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल आंसर क्या आता? 14 सेंटीमीटर। सो आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको डिवाइड 27 से कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर -14 आता। सो 14 है ना। सो इमेज कितना है? 14 है। ऑब्जेक्ट कितना है? 7 है। सो व्हाट इज द साइज? साइज क्या है? साइज इज एनलार्ज्ड। सो इमेज क्या है? इमेज इज एनलार्ज्ड। सो दिस इज द आंसर। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो यू क्या हो गया? -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? वाई? बिकॉज इट इज ए कॉनकेव मिरर एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इस वजह से मैं u का वैल्यू -15 सेंटीमीटर ले लिया। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ही इज गिविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो सिमिलरली अब f निकालना है इसमें से। वी नो दैट f का फॉर्मूला क्या है? जैसा कि r इज इक्वल टू 2f, तो इसमें से f निकाल सकते हैं ना। f इज इक्वल टू r/2, दैट इज नथिंग बट -20/2 इज -10। सो f कितना है? -10 सेंटीमीटर। नाउ place the values in the mirror formula. 1/f is equal to 1/u plus 1. अपने को फाइंड आउट क्या करना है? v करना है ना, तो you can write this formula like this. 1/v is equal to 1/f minus 1/u. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। f -10, u, this is u, -15. सो क्या हो जाता है? ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -10 प्लस 1/15। सो एज यूजुअल फिर से एलसीएम निकालना है दोनों का। तो एलसीएम निकाले तो क्या आता अपने को? देखेंगे। सो 1/-10 प्लस 1/15, सो 10 और 15 दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे। 2 5 जा 15 नहीं जाता ना, 15, 5 1 जा 5, 3 जा। तो सिमिलरली तो क्या आ गया ये? 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। एलसीएम क्या है? 30। तो अब अपन क्या करना है इधर? 1 - 10 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना 30 आने के लिए? 10 × 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर भी 3 प्लेस कर दिए। सिमिलरली 15
इससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता 2, सो 2 ऊपर भी प्लेस कर दिया। सो 1 इंटू 3 3 माइनस 30 प्लस 2/30, ये माइनस ऊपर भेज दीजिए। सो क्या होता है ये -3 प्लस 2/30। सो -3 प्लस 2/30 क्या होता -1/30। सो दिस इज अवर वैल्यू। कौन सा वैल्यू 1/v का वैल्यू। नाउ विल प्लेस दिस वैल्यू। सो 1/v क्या आ गया -1/30। सो अब 1 हटा देना है तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो v आ गया ना, v माइनस है, सो माइनस है तो इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। सो क्या है ये, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइज। तो साइज मालूम करने के लिए क्या करना है, वी शुड नो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, वही सेम HI/HO इज इक्वल टू -V/U। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने को डायरेक्ट ये वैल्यू आ गया ना, तो डायरेक्ट अपन ये वैल्यू ये लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -30 बाई -15। क्या होता है इधर, ये देखिए, ये माइनस ये है, -30 का है ये, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या होता 30/15। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आता -2। सो -2 मैग्निफिकेशन क्या है, -2 आ गया इधर। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ये वैल्यू अपन कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये मैग्निफिकेशन है। सो ये अपन नेक्स्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कैसा करेंगे, देखिए इधर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, HI/HO। सो अपने को मैग्निफिकेशन -2 आ गया, मैग्निफिकेशन के प्लेस में -2 लिख दिया। HI क्या है नहीं मालूम, HO 3 सेंटीमीटर। सो HI क्या हो जाता, इट गोज दिस साइड, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो HI क्या होता है, HI इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। सो इज इट एनलार्ज्ड और स्मॉल। अब देखिए कंपेयर करिए ऑब्जेक्ट और इमेज। सो एनलार्ज है ना, सो एनलार्ज इज द साइज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 2 सेंटीमीटर टॉल। इमेज क्या है 2 सेंटीमीटर। सो नाउ ही हैज गिवन HI 2 सेंटीमीटर। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 mm, ऑब्जेक्ट क्या है HI इज इक्वल टू 5 mm is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। सो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर। नाउ फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। सो V फाइंड आउट करना है और F अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसा फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए। नाउ ये प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। M इज इक्वल टू HI/HO। अब यहाँ पे देखिए जनरली वी टेक दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे -V/U लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों, ऑलरेडी HI इज गिवन एंड HO इज गिवन। सो डायरेक्टली अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे,
एच आई सेंटीमीटर में है और एच ओ मिलीमीटर में है। सो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। सो कैसा करेंगे, विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सो एच आई इज इक्वल टू 20 mm। वाई? बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहते, तो 2 सेंटीमीटर में कितने होते, 20 mm। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग एच आई इज इक्वल टू 20 mm। सो डायरेक्टली अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। h क्या है, 20/5। सो आई विल बी गेटिंग 4। सो m इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देन आई विल बी गेटिंग u का वैल्यू, आपको v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब m क्या आ गया, m इज 4, v क्या है, वी डोंट नो, माइनस v। u क्या है, u इज गिवन हाउ मच, -10। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होता, 4 इंटू -10 इज इक्वल टू -v। सो दैट इज नथिंग बट -40 इज इक्वल टू -v। सो माइनस माइनस चले आता, सो वी गेट दैट v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा, वी हैव टू राइट द इमेज is formed at 40 centimeter in front of the mirror। Now क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, फॉर्मूला सेम, मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो डायरेक्टली अब अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। 1/f इज इक्वल टू u क्या है, -10 प्लस v क्या है, -40। सो इसको सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होता है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, -10 -40। इसी तरह से इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे एलसीएम इसका, -10 -40। तो इसका एलसीएम निकाले तो क्या होता है, 10 - 40। 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो क्या आता है इसका, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। सो एलसीएम क्या आ रहा, 40 आ रहा। सो -10 इंटू 4, 40 इंटू 1 इंटू 1। सो 4/40 माइनस 1/40। सो क्या हो जाता है इधर, माइनस, ये माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/40। सो अब क्या करना है, 5/40 आ गया ना। सो यू नो प्लस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 1/, यहाँ पे आ जाता। तो 1/f इज इक्वल टू हाउ मच, 5/40, और 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा इज इक्वल टू 1/8। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। विच सेंटीमीटर, माइनस है ना यहाँ पे, सो -8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फोकल लेंथ। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 20, u is equal to 20 centimeter. It is a concave mirror. Focal length is also given, f is equal to how much,
-30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? वाई? बिकॉज इट इज़ ए कॉनकेव मिरर। सो क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट V. व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन क्या है? तो क्या करना है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो अब अपन क्या कर सकते हैं? इसको v निकालना है ना, so we can write like this 1/v is equal to 1/f minus 1/u। सो क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। f क्या है? -30। u हाउ मच? 20। अब दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या आता है? इधर 60 आता। सो यू कैन राइट लाइक दिस 3 - 2 इज इक्वल टू 1/60 और 1/v इज इक्वल टू हाउ मच? 60 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है ना इधर। सो अगर पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है देन इट इज वर्चुअल इमेज। रिमेंबर दिस, अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है? इट इज ए वर्चुअल इमेज। नाउ लेट अस फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? -v/u। सो हियर -v -60/u how much? -20। 0 0 get cancel, 2 3। सो हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। ये दो माइनस भी कैंसिल हो जाते हैं, फाइनली विल गेट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी प्लस है ना। सो प्लस का मतलब क्या है? इमेज इज एरेक्ट, स्ट्रेट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now let us see the next problem. There is an object in front of a convex mirror. Now the mirror is changing. यहाँ पे convex mirror आ जा रहा है। Now let us see how ये problem कैसा करना है। So given क्या है? u is equal to -5 centimeter. And the focal length f is given. F is equal to 10 centimeter. So convex mirror है, so here the focal length will be positive. F will be positive. Now what you have to find out? You have to find out V. V find out करना है और M भी find out करना है, magnification. Now let us see, same formula use करना है। 1/f is equal to 1/u plus 1/v. Is it clear? Now directly we'll substitute the values. 1/10, u क्या है? 1/-5 plus 1/v, और we can bring this 1/v this side, इधर ला लिए तो क्या होता है? 1/10 plus 1/5 is equal to how much? अगर दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या आता है? ये you will get 10. सो दोनों का सिंप्लीफाई करें तो 1 + 2, दैट इज नथिंग बट 3/10। सो v इज इक्वल टू हाउ मच? 1/v इज इक्वल टू 3/10। बट वी नीड v नो, तो v को क्या करना है इधर? 10/3। उल्टा हो जाता ना, रिवर्स हो गया तो क्या आता? v इज इक्वल टू 10/3। अब v का वैल्यू क्या है? अगर अपन इसे डिवाइड करें तो v इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस, वी गॉट द इमेज डिस्टेंस। अब अपने को क्या करना है? मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू -v/u। सो -3.33 बाई -5। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने को आंसर क्या आता? 0.7
0.66 centimeter. So this is the magnification. Is it clear? He has given the data in the table. So you can see here object distance and image distance. By looking at this table, you have to answer the questions which are given here. What is the formula to find the focal length of mirror? So formula तो अपने को मालूम है क्या है, 1/f is equal to 1/u plus 1/v. So इसका आंसर तो फर्स्ट वन का आ गया. Now is asking us to find out the focal length. Now let us find the focal length. 1/f is equal to u how much? Let us take any value here. We will take this value and find out the focal length. So 1/20 plus 1/20. अगर दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या आता? 2/20. Directly will get. So 2 ones are 2 tens are. So 1/10. So 1/f is equal to 1/10, which is nothing but f is equal to 10 centimeter. So this is the focal length of the mirror. Now let us see the next problem. The object is placed at 10 centimeter from the convex mirror. So u is equal to minus 10 centimeter and focal length क्या है, f is equal to 15 centimeter. So he is asking us to find out v. Find the position and nature of the image. Position is nothing but this is your v. So by substituting the formula 1/f is equal to 1/u plus 1/v, simply value substitute कर देंगे. f is equal to 15, u is equal to minus 10 plus 1/v. 1/v को इधर ला लेंगे, is equal to 1/15 plus 1/10. और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम निकाले दोनों का. एलसीएम निकालने के बाद क्या आता? 32 plus 3 is equal to 5/30 और 5 ones are 5 6 are. So 1/v is equal to how much? 1/6, or I can write v is equal to 6 centimeter. So image क्या है? Positive है ना इधर. So the image is positive, then it is virtual. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा तो ये वर्चुअल है. And this is the distance, size of the image, 6 centimeter. So I hope the students you have understood the numerical problems of this chapter. So if you go through the video, wherever you are having any doubt, it will be easy for you to understand. And thank you very much for watching this video.